हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक विपत्तियाँ निकल ना जाएं, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। Be merciful to me, O God, be merciful to me, for in you my soul takes refuge. In the shadow of your wings I will take refuge till the storms of destruction pass by. I cry out to God Most High, to God who fulfills His purpose for me. अजीजों, आज सबका स्वागत मैं आज की इस इबादत में करता हूँ. I welcome you all in this Sunday service, and may God bless us all. Let us begin our worship with the word of prayer. Thank you, dear gracious Heavenly Father, for the wonderful moment that you have given us, the Lord, as we all are in your presence, and be with us, Lord. And I commit each and every one of us into your mighty hand, the viewers and the congregation members into your mighty hand. Be with us, Lord, and this worship and today's, Lord, singing and Bible reading and each and everything will be acceptable unto you. And Lord, you may glorify through our life. Thank you, God, for hearing our prayer. We ask this pray in Jesus' most precious name. Amen. अजीज़ों, अब ये वक्त होगा कि हम परमेश्वर की इबादत को करेंगे और अपने पहले गीत को हम गाएंगे. The first song we will sing for the glory of God, which is found in Hindi book number 371A, 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 जिसके बोल इस प्रकार हैं. नेक सारी मंडली ही की है यीशु प्रभु नाम. आइए हम सब परमेश्वर की इबादत करें और इस गीत के अंदर शामिल हो और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं. अब ये वक्त होगा कि हम अपने ईमानों का इकरार परमेश्वर के आगे करेंगे. We will confess our faith before God, and Apostles' Creed को हम सब एक साथ मिलकर कहेंगे, जो कि इंग्लिश में पाया जाता है 738 और हिंदी में पेज नंबर 1. Let us unite in this historical confession of faith. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and buried. The third day He rose from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. अजीजों, हम सब उत्तरवादी पाठ में जाएंगे. For today's responsive reading has been taken from the book of Psalms, number 69, verses beginning from 1 to 7. The book of Psalms, number 69, beginning from 1 to 7. And the first verse I will read and the second verse you will read. Let us read all together. Save me, O God, for the waters have come up to my neck. I sink in the deep mire where there is no foothold. I have come into the deep waters, and the flood sweeps over me. I am weary with my crying out, my throat is parched. My eyes grow dim with waiting for my God. More in number than the hairs of my head are those who hate me without cause. Mighty are those who would destroy me, those who attack me with lies. What I did not steal must I know, restore. O God, you know my folly. The wrongs I have done are not hidden from you. Let me those who hope in you be put to shame through me. O Lord God of hosts, let not those who seek you be brought to dishonor through me. O God of Israel,
And the last verse we will read all together. For it is for your sake that I have borne reproach, the dishonor has covered my face. And Glory Patria we will sing all together. हम लोग सब होसिता इशबाब की एक साथ मिलकर गाएंगे. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost. And it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. Amen. May God bless you all. अभी तो ये वक्त होगा कि हम पास्टरल प्रेयर में जाएंगे. हम अपने सप्लिकेशंस को, विनतियों को, निवेदनों को परमेश्वर के आगे रखेंगे. We will put our supplications, our requests before God and to His feet because He is Almighty. And we will pray for our churches. We will pray for our bishops. We will pray for our conference leaders. We will pray for today's message. And for those who are going to celebrate their birthdays and their anniversaries during this week, we will pray for the sick people, those who are not well. We will pray for them and we will ask God's glory may upon them. And I may request Reverend Mankumar Rai, please come and lead us in pastoral prayer. आइए हम प्रार्थना में जाएंगे. अपनी आंखें को बंद करें और परमेश्वर से दुआ मांगें. महान जीवित परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का मालिक, राजाओं का राजा और प्रभु का परमेश्वर, ये सुंदर समय आपने हमें दी है और धन्यवाद करते हैं. पूरे प्रभु परमेश्वर हफ्ता भर आपने संभाला और इस हफ्ता के पहले दिन में प्रभु परमेश्वर आपने हमें लेके आया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं. और विशेष तौर से हम प्रार्थना करते हैं पासवानों के लिए जो प्रभु तेरे वचन को लेके आते हैं, उनके मुंह पात्र होकर आप बातचीत करें. और प्रभु परमेश्वर पिता, आप उनके जीवन से होकर प्रभु परमेश्वर और तेरे जीवित वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत करें. और सचमुच प्रभु परमेश्वर पादी साहब नहीं बल्कि परमेश्वर डीएस नहीं बल्कि परमेश्वर आप ही उनके जीवन से बातचीत करें. और जिन्होंने तेरे वचन को सुनते उनके जीवन में प्रभु बहुत प्रभु परमेश्वर प्रभावशाली होने पाए और जीवन में बदलने पाए. मैं दुआ मांगता प्रभु परमेश्वर पिता इस देश के प्रभु परमेश्वर देश के लिए और प्रभु परमेश्वर देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अर्थ मंत्री, राज्यपाल और तमाम मंत्रीगणों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ. खुदा बाप उन्हें ज्ञान और बुद्धि विवेक दे. और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस महामारी से और इस लॉकडाउन के अंदर प्रभु परमेश्वर इन सब को प्रभु परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान के द्वारा इस देश को किस तरह चलाना है आप सहायता और मदद करें. और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर तमाम लीडर्स लोग के लिए और प्रभु परमेश्वर और तमाम जो सेवा करते हैं उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ. डॉक्टर, नर्स, स्टाफ और तमाम कर्मचारी, सफाई कर्मचारियों के लिए. और दुआ मांगता हूँ प्रभु परमेश्वर पुलिसकर्मी और प्रभु नेवी और प्रभु और तमाम जितने भी सुरक्षा बॉर्डर में तैनात प्रभु परमेश्वर उन सारे आर्मियों के लिए प्रभु परमेश्वर प्रभु भाई जलवायु और प्रभु परमेश्वर इन तमाम प्रभु परमेश्वर पुलिसकर्मी को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं. और मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा बाप इन तमाम लोगों को बुद्धि और ज्ञान दे और हर खतरा और जोखिम से बचाए. और दुआ मांगता प्रभु परमेश्वर पिता इन सारे बातों को प्रभु तेरे चरणों में रखता हूँ. अब मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर तमाम प्रभु परमेश्वर बिशप साहब के लिए और प्रभु परमेश्वर उनके परिवार के लिए, डीएस साहब उनके परिवार और पासवान के लिए और प्रभु कॉन्फ्रेंस ट्रेजरर और प्रभु परमेश्वर तमाम लोगों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं. और प्रभु परमेश्वर हमारे प्रभु परमेश्वर एक एक जन को प्रभु तेरे चरण में रखते हैं. खुदा बाप राजाओं का राजा प्रभु का परमेश्वर. और मैं दुआ मांगता प्रभु परमेश्वर संडे स्कूल के टीचर और प्रभु परमेश्वर तमाम कमेटी मेंबर और पीसी मेंबर और प्रभु परमेश्वर तमाम लोगों के लिए. और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर साइमन का लिए और सृष्टि का और
सरमोन और प्रभु परमेश्वर इन तमाम लोगों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। सहायता मदद करो शरण के लिए। इनकी प्रभु 7 तारीख से प्रभु परीक्षा है, पेपर है। खुदा बाप उन्हें सहायता और मदद करे और ज्ञान और बुद्धि दे। साथ में प्रभु परमेश्वर नंदराज जी का नेपाल में मम्मी है, उनको सुरक्षा दे। और विगत दिन में बहुत प्रभु परमेश्वर भूकंप के द्वारा घर में जो परेशानी आए उन सबको प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं और विशेष करके इनके घर फैमिली को सुरक्षा दे। मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम बातों के लिए और मैं प्रार्थना करता हूँ इस जितने भी प्रभु परमेश्वर हमारे नेपाली, हिंदी, इंग्लिश तमाम कांग्रेगेशन में जितने भी इस हफ्ता के अंदर में जितने का भी जन्मदिन आते हैं, खुदा बाप उन्हें प्रभु परमेश्वर मुबारक करे और लंबी आयु देकर और इस साल में प्रभु परमेश्वर आप उनके साथ रहे और सुरक्षा दे। और जो विगत दिन में नहीं कर पाया इस साल उनको बहुत ऐसे आशीष आप दे और प्रभु परमेश्वर आपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और इस हफ्ता के अंदर जितने भी प्रभु एनिवर्सरी है प्रभु परमेश्वर उन कपलों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। उन पर तेरी अनुग्रह दया बने और उनके जीवन से, उनके वैवाहिक जीवन से लोगों को उत्साहित और आशीषित मिले और उनके जीवन से लोग सीख सके और खुदा आपको जान सके, क्योंकि परमेश्वर तेरा आचरण उनके जीवन में, उनके परिवार में आए ताकि आस पड़ोस के लोग आपको जानने पाए। दुआ करता खुदा बाप और तमाम प्रभु परमेश्वर हमारे स्टाफ मेंबर के लिए और तमाम प्रभु परमेश्वर चेयरमैन कमेटी के चेयरमैन के लिए खुदा बाप उन सबको बुद्धि और ज्ञान दे, ताकत और तंदुरुस्ती दे और इस समय में विशेष करके खुदा बाप एक दूसरों को समझने वाले, एक दूसरे के लिए दुआ करने वाले बनाए। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर पिता पास्टर सारण और उनके सेवकाई के लिए, उनके परिवार के लिए और बहुत ऐसा इस्तेमाल करे देश साहब उनके घर परिवार के लिए, उनके सेवकाई के लिए। और फिर से मैं दुआ मांगता हूँ खुदा बाप दीपक जी और उनके घर परिवार के लिए, उनके काम के लिए और बहुत ऐसे आशीष करे। आनंदराज जी उनके घर परिवार के लिए, फैमिली के लिए दुआ मांगते हैं प्रभु परमेश्वर। इसी तरह अशोक उनके घर परिवार के लिए, उनके काम पर आशीष करे और अमनीश उनके घर परिवार और उनके सब तमाम लोगों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। और खुदा बाप धन्यवाद करते हैं, इतने समय तक आपने सुरक्षा दिया है, हर खतरा जोखिम से बचा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद के साथ ये सारे विनती और प्रार्थना को तेरे हाथ में सौंपते हैं। और जितनों भी हमारे प्रभु परमेश्वर तीनों कांग्रेगेशन में जितने भी कोई अगर शरीर में कमी कमजोरी है, खुदा बाप तेरे रूप और तेरे हाथ को चाहते हैं, जो छेदा हुआ हाथ और प्रभु परमेश्वर जख्मी हाथ से छूकर पूर्ण रीति से स्वास्थ्य और चंगाई करे। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक तीनों जगह में प्रभु परमेश्वर आप चंगाई करके अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें। उस घर परिवार को प्रभु तेरी अनुग्रह, तेरी कृपा दृष्टि की जरूरत है, आप उनके साथ रहे। धन्यवाद के साथ ये सारे तमाम विनती और प्रार्थना को आपका प्रिय पुत्र हमारा उद्धार करता यीशु नासरत के नाम से मांगते हैं, जिसने हमें यूं प्रार्थना करने सिखाया। है हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरे नाम पाक माना जाए, तेरे राज्य आए, तेरे मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ये जमीन में पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपराधी को माफ़ किया है उसी तरह हमारे अपराधों को माफ़ कर। हमें परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत जलाल हमेशा तेरा रहे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो और उन बातों के लिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और वास्तव में ये एक अच्छी बात है कि हमारा जो परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, ही इज़ ऑलमाइटी गॉड और ऑलवेज ही हियर्स आवर प्रेयर। अब ये वक्त होगा अजीज़ों कि हम कुछ गीत के माध्यम से हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रेज एंड वर्शिप हम लोग सब एक साथ उसमें शामिल होंगे और मैं निवेदन करता हूँ प्रेज एंड वर्शिप टीम से कि वो सामने आए और हमें प्रेज एंड वर्शिप के अंदर हमारी अगुवाई करें। भजन संहिता अध्याय 95। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए। Hallowed be thy name, Jehovah God, you reign, and you will never
never change, oh Lord. Forever you're the same. Hallowed be thy name. Jehovah God, you reign. And you will never change, oh Lord. Forever you're the same. Jehovah Jireh, you provide my every need. Jehovah Rapha, always bringing her to me. Hallowed be thy name. Jehovah God, you reign. And you will never change, oh Lord. Forever you're the same. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shammah, you are always there for me. Hallowed be thy name. Jehovah God, you reign. And you will never change, oh Lord. Forever you're the same. And you will never change, oh Lord. Forever you're the same. Hide me now under your wing. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His heart in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. At the cross, I surrender my life. I'm in awe of you. I'm in awe of you. Where your love ran red and my sins washed white. I owe all to you. I owe all to you. There
There's a place where mercy reigns and never dies. There's a place where streams of grace flow deep and wide, where all the love I've ever found comes like a flood, comes flowing down. At the cross, I surrender my life. I'm in awe of you. I'm in awe of you. Where your love ran red and my sins washed white. I owe all to you. I owe all to you, Jesus. There's a place where sin and shame are powerless, where my heart finds peace with God and forgiveness, where all the love I've ever found comes like a flood going down. At the cross, I surrender my life. I'm in awe of you. I'm in awe of you. Where your love ran red and my sins washed white. I owe all to you. I owe all to you. Here my hope is found. Here on holy ground. Here I bow down. Here I bow down. Here arms open wide. Here you save my life. Here I bow down. Here I bow. At the cross, I surrender my life. I'm in awe of you. I'm in awe of you. Where your love ran red and my sins washed white. I owe all to you. I owe all to you. I owe all to you. I owe all to you, Jesus. How you filled my life, oh Lord. How you fill our lives, oh Lord. I simply Want to say I love you, Lord. I simply want to say I love you. I simply want to say I adore you, and I want to lift your name even higher. प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार मुझे। इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम सदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ए यीशु मेरे खुदा।
स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर प्रेजेंट वर्शिप के लिए। अब ये वक्त होगा स्क्रिप्चर रीडिंग का। फॉर टुडेज स्क्रिप्चर रीडिंग हैज बीन टेकन फ्रॉम द फर्स्ट एपिस्टल ऑफ पॉल टू द चर्च ऑफ कोरिन्थ, चैप्टर 9 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 1 to 14। पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय 1 से लेकर 14 वचन तक। और हिंदी में हमारी अगुवाई करेंगी मिसेस सुषमा, इंग्लिश में हमारी अगुवाई करेंगी मिस एंड्रिया, और नेपाली में हमारी पढ़ने में अगुवाई करेंगी मिस साक्षी सुनार। द हिंदी रीडिंग विल बी टेकन फ्रॉम मिसेस सुषमा, द इंग्लिश रीडिंग विल बी रेड फ्रॉम मिस एंड्रिया, एंड नेपाली रीडिंग विल बी रेड बाय मिस साक्षी सुनार। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुने। मैं यहाँ पर पढ़ने जा रही हूँ और पहला कुरिन्थियन चैप्टर 9 वर्सेस 1 to 5। प्रेरित के अधिकार और कर्तव्य। क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? यदि मैं दूसरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हूँ, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। जो मुझे जांचते हैं उनके लिए यही मेरा उत्तर है। क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीही बहन के साथ विवाह करके उसे लिए फिरे, जैसे अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं? परमेश्वर के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुत बहुत आशीष हो। Good morning, church. Today's scripture reading is taken from 1 Corinthians chapter 9 verses 6 to 10. 1 Corinthians chapter 9 verses 6 to 10. Or do only Barnabas and I not have a right to refrain from working?
who at any time serves as a soldier at his own expense, who plants a vineyard and does not eat the fruit of it, or who tends a flock and does not use the milk of the flock. I am not speaking these things according to human judgment, am I? Or does not the law also say these things? For it is written in the law of Moses, "You shall not muzzle the ox while he is threshing." God is not concerned about oxen, is he? Or is he speaking altogether for our sake? Yes, for our sake it was written, because the plowman ought to plow in hope, and the thresher to thresh in hope of sharing the crops. This is the word of God. Thanks be to God. सबैलाई जय मसीह। आउनुहोस् हामी बाइबल पाठ गर्नेछौँ। पहिला कोरिन्थी 9:11-14 यहाँ यसरी लेखेको छ, यदि हामीले तिनीहरूको माझमा आत्मिक बिउ रोपेका छौँ भने र तिनीहरूको वेदीको समाप्ति कल्पना गर्न भने के त्यो अति भाग्य हो, र यदि अरूहरूले तिनीहरूमाथि यस मानिस सबै हकको द्वारा गर्छन् भने के हाम्रो अझै बढी हक छैन? तपनि हामीले यस हकको प्रयोग गरेका छौँ, तर ख्रीष्ट यीशुको सुसमाचार बाधा नपरोस् भनेर बरु हामी सबै कुरा सहनेछौँ। के तिमीहरूले थाहा छैन कि मन्दिरमा सेवा गर्नेले मन्दिरको थोकबाट खान्छन् र वेदीका सबै ग्रहण गर्नेहरूले बलिबाट खासो लिन्छन्? त्यसरी नै सुसमाचार प्रचार गर्नलाई पनि सुसमाचारबाट जीवनको चलावन बनी प्रभुलाई आज्ञा दिनुभयो। आमेन। अब ये वक्त होगा अजीजों कि एक स्पेशल नंबर हम सुनेंगे मिस लिज़बत के द्वारा, और उसके दौरान हम परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। हे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा यीशु, हे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा यीशु, मेरे दिल को आस है तेरी, मेरी जान को प्यास है तेरी, तेरे मंदिर में जब आऊं तेरी ताकत कुव्वत पाऊं। ऐ खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा यीशु, जिंदगी से बेहतर है तेरा रहम खुदा, होठ मेरे गाएंगे तेरी हम्द और सना, सारी उम्र तुझको मैं मुबारक कहूँगा, तेरा नाम लेकर अपने हाथ में उठाऊंगा, तेरा नाम लेकर अपने हाथ में उठाऊंगा, मेरे दिल को आस है तेरी, मेरी जान को प्यास है तेरी, तेरे मंदिर में जब आऊं तेरी ताकत कुव्वत पाऊं। ऐ खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा यीशु, रात के हर एक पहर में बस तेरी यादों में अपने बिछौने पे बैठा रहूंगा, खुद की
गिरजा को प्यास है तेरी, तेरे मंदिर में जब आऊं, तेरी ताकत कुव्वत पाऊं ऐ खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा यीशु, है खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा यीशु। परमेश्वर का धन्यवाद उस सुंदर गीत के लिए। अजीजों, अब ये वक्त होगा कि हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे उसके दास रेवरेंड डॉक्टर जॉन आर विश्वास के द्वारा। लेट अस प्रिपेयर आवर हार्ट, माइंड एंड सोल टू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड बाय रेवरेंड डॉक्टर जे.आर. विश्वास। प्यारे भाई और बहनों, हम आप सबों का आज की आराधना में हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरी आशा है कि आप सब इस आराधना का आनंद ले रहे हैं, आप आनंदित हैं। प्रभु ने आपको आनंदित किया है प्रभु की दया से, क्योंकि जब भी हम उसकी आराधना करते हैं तो हमारे हृदय का वो बोझ समाप्त हो जाता है जो हम ढोते हैं। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर ढूंढता है उन्हें जो उसकी आराधना आत्म सच्चाई से कर सकें। डियर फ्रेंड्स, द सन ऑफ गॉड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट सेज दैट गॉड सर्चेस द पीपल हु could worship him in spirit and in truth. And definitely we are the people who are worshipping him in spirit and in truth, and may the Lord guide and help us. As we once again study and the message that the God has given to us, today's lesson that has read to us is found in 1 Corinthians chapter 9 verses 1 to 12. 1 Corinthians chapter 9 1 to 12, where we study about his presence in the ministry of St. Paul. He talks about himself, and by that he is also giving us message that those who are called by God have the liberty to proclaim, to share the good news of Jesus Christ. Dear friend, this Apostle Methodist Church is a very unique church in whole of our MCI and daily annual conference. This is called a mature congregation with mission mindedness. We are a mission minded church. This church has sponsored and helped many girls in their studies in the hostels, and it has also helped in the mission projects. I remember once you visiting the Banswara mission project, and also at that time the church still now we have this mission project in Banswara, in Dungarpur, and in Udaipur. Now, even though we don't have the mission board functioning, but we have about 18 missionaries serving the Lord in different parts of Rajasthan, in Himachal Pradesh, and in Haryana, and in Punjab also. And therefore this church is categorically interested in mission, and I, being the pastor of this congregation, feel proud to be the pastor of this congregation, and I know that this church will continue to grow. We have also here in local Parvatiya camp, where we have the ministry among the Nepali people, Nepali migrants, and now and in the days to come you will see lot of growth in this mission field. This is a cross-line project where we are thinking for adult literacy class for these ladies who are there, illiterate now, but we will have some classes for them. And then also we have already started some of the very important project, that is to provide the boys and girls living in this area a free tuition up to 10th standard. And then there's another area in sector 1 near Mohan Singh Market, where there are about 550 to 600 families, and this is called Ambedkar Nagar. And also in the days to come there will be outreach program in and through Balwadi and some sewing center. And then also our ministry in the JNU and
other places will continue, and some of this work will be reviewed, so our work becomes so clear and motivational. So people who are involved and will be involved will be blessed by themselves. Also, we want to do some work in MIT University here in Gurgaon and in Noida, and hope that God will open the door in His time, and this church will initiate certain work there. And I am also looking for 1 or 2 avenues where we can start our new preaching points in the days to come. So this church, as it has been, it will continue to think and involve in the mission. And so I praise the Lord. So this morning, where we studied the St. Paul's desire for proclamation of the gospel and his wishes, all the information that I gave you is helpful for us. Let's pray as we hear the word of God today. प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ये मौका दिया कि आज फिर से एक बार हम आपके हुजूरी में आके प्रभु आपके नाम को ले सकते हैं। हम धन्यवाद देते इस धन्य कलीसिया के लिए प्रभु, जहाँ पर आपके सुसमाचार का प्रचार किया जाता है। धन्यवाद देते प्रभु उन लोगों के लिए जो निरंतर इस काम के अंदर पाए जाते हैं, और प्रभु जिनको आपने चुना है, ठहरा है, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। चाहते प्रभु कि कलीसिया आप में आगे बढ़े प्रभु जी। एक एक परिवार इस कलीसिया के, चाहे वो हिंदी कांग्रेगेशन के हों, चाहे इंग्लिश कांग्रेगेशन के हों, चाहे नेपाली कांग्रेगेशन के, हम चाहते प्रभु कि इनको बढ़ाएं, इन्हें प्रभु आप आशीष दे प्रभु, ताकि आपके अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं, और हम आने वाले 4-5 सालों के अंदर एक बहुत बड़े काम को होता हुआ देख सके प्रभु। हम जानते हैं कि वचन के द्वारा हम पढ़ते हैं प्रभु कि जहाँ दर्शन की बात नहीं होती है वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं प्रभु, लेकिन जहाँ दर्शन है, जहाँ विज़न और मिशन है प्रभु, वहाँ कलीसिया के अंदर ग्रोथ को हम पाते हैं। और उन कलीसियाओं के अंदर प्रभु ये कलीसिया जो एपोस्टल मेथोडिस्ट कलीसिया प्रभु जी मिशन के द्वारा जाना जाता है, हम आपकी स्तुति करते हैं, विनती करते हैं प्रभु इस कलीसिया का आशीष दे प्रभु, और अपनी सेवा इस कलीसिया के द्वारा ले, ताकि ना केवल लोग यहाँ पर आराधना के लिए आए, लेकिन अपने आप को प्रभु आपकी सेवा के लिए देने वाले बन सकें। हमारे जवानों से बातचीत करें लॉर्ड, स्पीक टू आवर यंग पीपल सो दैट दे आर गिवन योर विजन लॉर्ड फॉर द फुल टाइम मिनिस्ट्री, and do it Lord a great miracle in their lives master. We thank you and praise you Lord that today you are going to speak to us. धन्यवाद देते प्रभु कि आज आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, this the portion of the scripture that's read to us, there are various things that I want to talk to you, and the first thing, chapter 9 of 1 Corinthians verse 1 and 2. Am I not free? Am I not an apostle? Have I not seen Jesus our Lord? Are not you my workmanship in the Lord? If to others I am not an apostle, at last I am to you, for you are the seal of my apostleship in the Lord. अब इसको देखिए हिंदी में क्या लिखा है। क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? यदि मैं दूसरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हूँ, क्योंकि जब तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। अब इसको समझने के लिए हमें संत पौलुस की गवाही पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जो हम पाते हैं गलतियों की पत्री के अंदर। We read about the witness of St. Paul in the epistle of Galatians. Chapter 1, मैं पढ़ूंगा आपके सामने इस समय कुछ पदों को, जहाँ पर वो अपने बारे में कहता है। पहला अध्याय गलतियों की पत्री का उसके 11 पद से यहाँ लिखा है, देखिए मेहरबानी से। And this is in addition to the lesson that we read, and just I want to read here also. For I would have you know, brothers, that the gospel that was preached by me is not man's gospel. For I did not receive it from any man, nor was I taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ. For you have heard of my former life in Judaism, how I persecuted the church of God violently
and tried to destroy it. अब वो अपने बारे में कहता है, संत पौलुस यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। हे भाइयों, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्यों का सा नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुँचा, न मुझे सिखाया गया, पर प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी व्यवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादों की परंपरा के लिए बहुत ही उत्साही था। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ से ही मुझे ठहराया और अपना अनुग्रह से मुझे बुलाया, जब इच्छा हुई तो मुझ में अपने पुत्र को प्रकट किया कि अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाओ, तो मैंने मांस और लहू से सलाह ना ली और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, परंतु तुरंत अरब को चला गया और फिर वहाँ से दमिश्क को लौटा। फिर 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया और उसके पास 15 दिन तक रहा, परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और किसी प्रेरित से ना मिला। जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ, देखो परमेश्वर की उपस्थिति को जानकर कहता हूँ और वे झूठी बातें नहीं। अब यहाँ संत पौलुस अपने बारे में इस बात को स्पष्ट करता है कि वो अपने बुलाहट की बात करता है, अपने सेवकाई की बात कर। वो कहता है यहाँ पर, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। वो यहाँ पर कहता है, यहाँ पर और कहता है जो मैंने पढ़ा, क्या मैं स्वतंत्र नहीं, क्या मैं प्रेरित नहीं, क्या मैंने यीशु को जो प्रभु है नहीं देखा, क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं। अब यह पौलुस अपने जीवन के बारे में और उस उदाहरण के बारे में जो पुराने ज़माने में यहूदी लोगों ने मूसा के अगुवाई में पाई थी, एक चित्रण वहाँ पर। लेकिन जो पौलुस अपने बारे में क्या वो कहता है कि मैं इस काम को करने के लिए स्वतंत्र हूँ, प्रभु ने मुझे बुलाया है और इसके लिए अपनी गवाही यहाँ देते हुए कहता है कि प्रभु ने जब उसने मुझे बात करी, जब मैं दमिश्क को जा रहा था तो उसने मुझसे बात करी। और पहले तो मैं अपने लोगों को सताता था, मसीहियों को सताता था, और मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। लेकिन एक दिन आया कि मैंने प्रभु को देखा, उसको पाया दमिश्क के मार्ग में, और इसके बाद मैं किसी और से पूछना अच्छा ना समझा, मैं सीधे अरब को चला गया और वह 3 वर्षों तक प्रभु से सीखता रहा। और 3 वर्षों के पूरे होने के बाद मैं यरूशलेम को चला गया और मैंने 15 दिन तक पतरस के साथ यानी कैफा के साथ व्यतीत करी। उनसे उन बातों को सीखा, पूछा उससे सवालों को, और उसने मेरी बातों का जवाब मुझे दिया। अब यहाँ पर ये बिल्कुल जान पड़ता है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो पौलुस जवान हो रहा था और वो फरीसी बन गया। उसने यीशु मसीह की बातों पर ध्यान नहीं दिया था, हालांकि वो यहीं रहता था, यरूशलेम में रहता था, लेकिन उसने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था। और जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे तब भी पौलुस जवान था। उसकी उम्र मुश्किल से 15 या 16 साल की होगी या 20 साल की होगी। तो वो पढ़ाई में मग्न था और वो फरीसी बनना चाहता था। लेकिन जब बाद में चल करके प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जब वो फरीसी बन गया और कलीसिया को सताने लगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे बातचीत करी और उसको उसने चुन लिया। और तब पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया। उसके बाद पौलुस उस दर्शन के बाद 3 वर्षों तक अरब के जंगल में चला गया। आफ्टर दैट विजन दैट ही हैड ऑफ जीसस क्राइस्ट, आफ्टर हिज कॉलिंग दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द लॉर्ड ऑन द वे टू डमस्कस, ही straightway went to Arab, in the place where he was in isolation, in desert, and God spoke to him. He revealed his all plans for his life there only in Arab. And now Paul's talk, what he says here very clearly, he says, am I not free? Am I not an apostle? Have I not seen Jesus our Lord? Are not you my workmanship in the Lord? अब ये किनको कह रहा है? कुरिन्थ के विश्वासियों को कह रहा कि क्या तुम वास्तव में मेरे बनाए हुए नहीं हो?
क्या तुमने मेरे द्वारा प्रभु को नहीं पाया? मित्रों, ये पौलुस के जीवन के अंदर बहुत बड़ी बात है कि वो इस बात को करता है कि वो इन लोगों के लिए प्रभु के द्वारा ठहरा हुआ, उन लोगों के लिए विश्वासी था, और जिसके द्वारा प्रभु में ये लोग आए कोरिन्थ के अंदर, पौलुस के द्वारा आए ये। अगर हम पढ़ें इस पत्री के अंदर तो हम देखेंगे कि पौलुस 18 अगर हम निकाल लें प्रेरितों काम के, तो यहाँ आप देखेंगे कि पौलुस एथेंस को छोड़ करके कोरिन्थ में आया और वहाँ उसने प्रचार करा। अगर आप देखें, लिखा है 18 अध्याय प्रेरितों काम के पहले पद से। इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कोरिन्थ में आया। वहाँ उससे अक्विला नामक एक यहूदी मिला जिसका जन्म पंतुस में हुआ था। वो अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला के साथ इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लौदियस सीजर ने सब यहूदियों को रोम में से निकल जाने की आज्ञा दी थी, इसीलिए वह उनके यहाँ गया। उसका और उसका एक ही उद्यम था, इसलिए वो उनके साथ रहा और वे एक ही काम करने लगे, और उनका उद्यम या कार्य तंबू बनाने का था। वो सबत के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। और जब सिलास और तीमुथियुस मकदूनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह। तो वो समय था जब कोरिन्थ के लोगों ने पौलुस के द्वारा सुसमाचार सुना और विश्वास करा, और आगे चल करके कोरिन्थ के अंदर कलीसिया की स्थापना हुई। अब पौलुस यहाँ पर उसी का जिक्र करता है कि मित्रों, तुम्हें याद होना चाहिए कि मैंने तुम्हारे बीच में रहकर सुसमाचार का प्रचार करा और तुमने विश्वास किया। तो वहाँ ये कहता है, क्या मैं प्रेरित नहीं, क्या मैंने यीशु को जो हमारे प्रभु है नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं हो? अब पौलुस उनके जीवन के बारे में कहता है ना। Paul talks about his witness among the people who were in Corinth, and he said that you believe in Christ because I came there, and I also met Aquila, Priscilla, and we started working there. But subsequently, when I was preaching, many of you came to the Lord, and because of that visit of St. Paul, the first time in his second missionary journey, the church started in Corinth. कलीसिया की स्थापना हुई। पौलुस इस बात का वर्णन वहाँ पर अच्छे से करता है प्रेरितों काम के पुस्तक में। अब यहाँ पर लिखा है, यदि मैं दूसरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हूँ। क्यों कहता? क्योंकि उसको अधिकार है, he had that authority about these people who were in Corinth. He said that for you who are the seal of my apostleship in the Lord. वो कहता है कि तुम सब मेरे लिए मेरी प्रेरिता के छाप हो। मैंने प्रभु के द्वारा भेजा जाकर कोरिन्थ में गया, और वहाँ पर मैंने दुख उठाया, परेशानियाँ उठाई, और अक्विला प्रिस्किल्ला ने मेरी मदद करी। लेकिन वहाँ पर तुम लोग प्रभु के पास आए और तुम सब लोग मेरी प्रेरिता के लिए छाप हो। And I think this is a great testimony from St. Paul. He knew that he witnessed about Jesus Christ to the people of Corinth, and they came to Christ and the church started. मित्रों, यही तो कलीसिया की शुरुआत की बात होती। क्या हम अपने जगह से निकल करके दूसरी जगह गवाही देने की बात करते? अभी मैंने 10 मिनट पहले बोला कि जो एपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च है, इसका एक दर्शन यह है कि दूसरी जगह कलीसिया की स्थापना करें। आप लोगों ने बसंत कुंज पे काम को स्टार्ट करा। अब बसंत कुंज और न्यू पालम बिहार 2 कलीसिया बन चुकी है, लेकिन उसका श्रेय इस चर्च को जाता है। और आने वाले दिनों में, अगले 5 सालों में हम लोग ध्यान देंगे कि हम और जगह जगह जाएं, मनेसर में कलीसिया की स्थापना करें और बाकी जगह पर करें जो प्रभु हमें दिखाएगा। क्या पता गुड़गांव में 1-2 जगह और हम इस काम को पूरा करें, या आगे जाएं। ये जो आगे की जगह है सोना रोड में, हम नहीं जानते, लेकिन प्रभु हमें ले जाएगा। हमें इन कामों के लिए खुले रहने की आवश्यकता। वी नीड टू ओपन फॉर दिस वर्क। आई एम टॉकिंग दैट वी हैव ऑलरेडी इनिशिएटेड एंड 2 churches have been started because of this church in the past. One is Vasant Kunj and other is New Palam Bihar Christ Church. This church is responsible, and in that 5 years time, I hope and I have the vision that we'll start some of the work in Manesar and in Sona Road, in other places also, and that requires all of your support and prayer. हमें इसको करने की आवश्यकता,
ये इस कलीसिया के द्वारा होगा, यह मेरा विश्वास है। अब पौलुस यहाँ पर कहता है कि उसने कुरिन्थ के विश्वासियों को वचन सुनाया और वो अधिकार के साथ कहा, ही इज टॉकिंग विद ऑथोरिटी दैट यू आर द सील ऑफ माई एपोस्टलशिप इन द लॉर्ड। तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। इस बात को हमें ध्यान देने और समझने की आवश्यकता है। कलीसिया जब मिशन माइंडेड होती है तो दूसरे कलीसियाओं की स्थापना करती है और बाद में चल के मदर चर्च हो जाता है। असली मैं कहता हूँ ये जो हमारी कलीसिया है हमारा मदर चर्च है और 2 सिस्टर चर्चेस हो चुकी हैं और आगे 4-5 सालों में हमारी कोशिश है, प्रार्थना है कि प्रभु इस कलीसिया के द्वारा 2-3 जगह और कार्य करे। क्या पता है पर्वतीय क्या आगे चल के एक नेपाली चर्च बन जाएगा, ऐसा हम कार्य कर रहे हैं, सोच रहे हैं। क्या पता ये जो सेक्टर 1 का जो मोहन सिंह मार्केट के पास है, जो सेक्टर 1 का, वहाँ पर प्रभु की कलीसिया बन जाए। इन 500-600 परिवारों में हम जानते प्रभु करेगा। तो हमें इसके लिए दिलचस्पी लेने की आवश्यकता है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है और अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है, प्रभु के लिए उपलब्ध होने की आवश्यकता है कि जो भी वो कार्य हमें दे उसको हम कर सके। दूसरी बात, जो मुझे जांचते हैं उनके लिए यही मेरा उत्तर है, क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीह बहन के साथ विवाह करके उसे लिए फिरें जैसा अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं? यह केवल मुझे और बरनबास को ही अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़ें? कौन कभी अपनी गिराह से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाग की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उसका दूध नहीं पीता? अब यहाँ पर संत पौलुस अपने कार्य के बारे में करता है। मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया, हम दोबारा उसको देखना चाहेंगे। प्रेरितों काम की पुस्तक अगर देखें इसका 18 अध्याय को, जो संत पौलुस की मिशनरी यात्रा के दौरान हम पाते हैं, तो यहाँ पर वो कोरिन्थ में गया और वो कार्य करने लगे, मेहनत करने लगे। उसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कोरिन्थ में आया। प्रेरितों काम उसका 18 अध्याय 1 पद। After this Paul left Athens and went to Corinth, and he found a Jew named Aquila, a native of Pontus, recently came from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had commanded all the Jews to leave Rome. And he went to see them, and because he was of the same trade, he stayed with them and worked, for they were tent makers by trade. अब ये तंबू बनाने का काम करते थे और जब अक्विला प्रिस्किला उनको मिल गए तो उन्होंने ना केवल उनके साथ कार्य करने के लिए वहाँ वो रुक गए, लेकिन वो कार्य करने लगे और उनका कार्य था तंबू बनाना, उनका उद्यम था तंबू बनाना। और यह लिखा है, इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़ करके कुरिन्थ में आया। वहाँ उसे अक्विला नामक एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुंतुस में हुआ था। वो अपनी प्रिस्किला के साथ इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लॉडियस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी, इसीलिए वो उनके यहाँ गया। उसका और उनका एक ही उद्यम था, अर्थात वो उनके साथ रहा और वो काम करने लगे और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। वो हर एक सबत के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। अब वो अपने उद्यम के साथ काम करने के साथ साथ पौलुस प्रचार भी करता था। इस काम को पौलुस ने कभी नहीं छोड़ा। एंड आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वी हु आर सेकुलर इन आवर जॉब, whenever we have time, we need to proclaim the gospel of Jesus Christ. जब भी हमें मौका मिलता है मार्केट प्लेस में, अपने कार्यस्थल में, हम शांत ना रहे, लेकिन जब भी मौका मिलता हम जाके सुसमाचार का प्रचार करें। लिखा है कि तुम अपने रोटी को पानी में डाल दो, तुम वो वचन का प्रचार करो। तुम नहीं जानते हो कौन सा बीज कब काम आएगा, कौन सा बीज जो है कब फल उत्पन्न उसके द्वारा होगा। इसलिए हमें निरंतर प्रचार करने की आवश्यकता जहाँ भी हम रहते हैं। अब पौलुस ने यह करके हमें बता दिया, पॉल वाज ए मिशनरी and this was the second missionary journey where he went to Corinth and started working with Aquila and Priscilla because they were the tent makers. But every day, every Sabbath day, on the Sabbath day, he went in the synagogue or the holy temple and started proclaiming the good news of Jesus Christ. मित्रों, हम खाली नहीं बैठ सकते। अगर हम प्रभु के लोग हैं तो हम खाली नहीं बैठ सकते। और ये जो हमारी कलीसिया है, एपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च,
यहाँ पर उन लोगों की आवश्यकता है जो अपने फ्री समय में सुसमाचार का प्रचार करते हैं। मुझे याद है बहुत साल पहले जब मैं तिहाड़ जेल में प्रचार करता था, उस समय 10,000 कैदी थे। अब प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि अभी भी इस जगह पर सुसमाचार का प्रचार किया जाता है, तिहाड़ जेल में। और उस समय भी कई लोग सैकड़ों की तादाद में प्रभु में आए। हालांकि चूंकि जेल है तो हम ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं करते थे, इसकी आवश्यकता भी नहीं, लेकिन प्रभु जानता। आज भी हम करते हैं, लेकिन हमें इस काम को फॉलो अप करने की आवश्यकता है, निरंतर जाने की आवश्यकता है। बहनों के जेल में जाए और भाई अलग अलग स्थानों में जाए। अब तो चाहे शायद वहाँ पर 6 जेल हो गए, 7 जेल बन गए, पहले तो 4 ही थे, अभी नहीं पता कितने कैदी। उस समय यहाँ पर 10,000 कैदी थे। तो हमें इन बातों को इनिशिएटिव लेना, और बच्चों का जेल अलग है, नारीशाला अलग है, हमें वहाँ जाने की आवश्यकता है, न केवल उन जगहों पर, लेकिन ऐसी भी जगह पर जाने की आवश्यकता है ताकि हम व्यक्ति से व्यक्ति बात करें, 1 to 1। अब वो समय चला गया कि मास्क से बात करें, हम एक से एक बात करते हैं। टारगेट बनाए कि साल में कुछ ना कुछ हो तो कम से कम 4 लोगों से हम बात करें, 3 महीने में एक व्यक्ति से बात करें, फॉलो अप करें, उनको पत्र लिखें, उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताएं। तभी तो कलीसिया बढ़ेगी, तभी तो कलीसिया का काम बढ़ेगा। और ये काम पौलुस ने कहा, यहाँ लिखा है यहाँ लिखा है कि वो हर एक सबत के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। एंड ही reasoned in the synagogue every Sabbath and tried to persuade Jews and Greeks। किस बात के लिए? कि यीशु मसीह को जाने, यीशु मसीह को पहचाने। एंड ही वॉज सो ओपन, वो बिल्कुल खुला हुआ था, वो इन बातों को अपने हृदय के अंदर रखता था। एंड ही वॉज वेरी ओपन, एंड whenever he got the opportunity, especially on the Sabbath day, he proclaimed Jesus Christ. And many who heard the word of God, they opened their heart and they came to Jesus Christ। और उन्हीं को पौलुस आज लिख रहा, वो कहता है कि तुम सब जो यहाँ रहते हो, कुरिन्थ के अंदर रहते हो, तुम सुसमाचार के प्रचार के लिए मेरे क्या हो, प्रेरिताई पर छाप हो तुम। वो दूसरी बात में कहता है कि प्रभु ने हमें अधिकार दिया कि हम मेहनत करें और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति उसके द्वारा हो। यह साफ लिखा, कौन अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है, कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता, कौन भेड़ों की रखवाली करके उसका दूध नहीं पीता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ही सेज, हु सर्व्स एज अ सोल्जर एट हिज ओन एक्सपेंस, हु प्लांट्स ए विनीयार्ड विदाउट ईटिंग एनी ऑफ द फ्रूट, और हु टेंड्स अ फ्लॉक विदाउट गेटिंग सम ऑफ द मिल्क। मतलब ये है कि जो सेवा करते हैं, वचन में लिखा है कि उनको उनकी देखरेख सेवा के द्वारा होती है। हम लोग मित्र जो पासबान हैं, जो प्रचारक हैं, जो मिशनरी हैं, या जो फुल टाइम मिनिस्ट्री में है, प्रभु हमारे लिए इंतजाम करता है। और उसने पिछले 35 सालों से, जब से मैं पास्टरल मिनिस्ट्री में हूँ, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करी है। और मेरी समान असंख्य प्रभु के सेवक सेविका हैं। प्रभु हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसलिए हम संतुष्ट रहते हैं। वी आर कंटेंट, ऑल दैट वी रिसीव वी आर कंटेंट। और यही हमारे जीवन की गवाही है, और हम यही शिक्षा देते हैं। अगर कोई गलत बात बोलते हैं या अफवाह फैलाते हैं तो अलग बात है, वो उनका जिम्मा उनका होगा, और वो एक दिन उनको प्रभु को जवाब देंगे। लेकिन हम लोग संतुष्ट अपने सेवा कार्य के द्वारा जो भी दिया जाता है उसको धन्यवाद के साथ ग्रहण करते हैं और उसके काम को आगे करते हैं। और आप भी जो प्रभु ने आपको हिकमत दी है, सामर्थ दी है, ज्ञान दिया है, अब जो भी मेहनत करते, सेकुलर वर्क करते हैं, प्रभु जो भी आपको देता है संतुष्ट रहें, और उससे थोड़ा सा निकल करके, कम से कम 10% निकाल करके प्रभु की सेवा में दें, ताकि प्रभु की सेवा और आगे बढ़ सके। ये वचन की सेवा है, वचन के द्वारा हम शिक्षा पाते हैं। तो दूसरी बात है कि प्रभु उनकी देखभाल करता है जो उसकी सेवा के अंदर तन मन धन देते हैं। जीसस इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड देयर ऑल नीड्स who are faithful in the ministry of the Lord Jesus Christ. And even St. Paul's talk about that. We read in Philippi chapter 4 verse 19 that my God will supply all your needs according to the richness in Jesus Christ.
यीशु मसीह के महिमा के धन के अनुसार वो हमारी घटी कमी को पूरा करता है। पौलुस की उसने करी और अभी तक उसने करा है और आगे भी करेगा। मित्रों, ये प्रभु की सेवा है। दिस इज हिज सर्विस। दिस इज नॉट टू एक्सटेंड एनी प्राइवेट कंपनी or any product. This is to extend his kingdom, and to extend his kingdom, when we have given our lives, he is there to take care of our lives. वो हमारे जीवन की आवश्यकता पूर्ति करता है, उसने करा है और आगे भी करेगा, और इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसमें हम सब सम्मिलित हैं। We are all included. We are who are supporting as prayer partners, as church members, or as we give our tithe or our offering. We are all in the same ministry of the proclamation of the kingdom of God, of the preaching of the good news. There are people who are in the front line, they preach, they share the good news, and we are behind them to support them through our prayers and through our tithe and offerings. और हमें इस काम को करते जाने की आवश्यकता है। यह बाइबल की शिक्षा है, प्रभु का वचन हमारे लिए। तीसरी बात यहाँ लिखा है 8 पद में, क्या मैं ये बातें मनुष्य की रीति पर बोलता हूँ? क्या व्यवस्था की यही नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दांवते समय चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। क्या परमेश्वर बैलों की ही चिंता करता है या विशेष करके हमारे लिए करता है? अब यहाँ पर इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जो सेवा में पाए जाते हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति सेवा के द्वारा ही होती है। ये बाइबल का वचन यहाँ लिखा है, Do I say these things on human authority? Does not the law say the same? For it is written in the law of Moses, you shall not muzzle an ox when it treads out the grain. It is for auction that God is concerned. अगर वो उनकी चिंता करता तो हमारी चिंता भी करता। और पौलुस कहता है, और आज हम जो वचन सीख रहे हैं वो यहाँ पर ये है कि जो प्रभु की सेवा के अंदर हैं फुल टाइम, प्रभु उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति उनकी सेवा के द्वारा ही कर रहा था। ज़्यादा नहीं, लैविशली नहीं, लेकिन उतना प्रभु देता है जितनी हमारी आवश्यकता। और इन तमाम सालों में जो 34 साल की सेवा मेरी है, जो मैं आज मैं मैथोडिस्ट चर्च के साथ कर रहा हूँ, 1986 से करीब 34-35 साल हो गए। प्रभु ने कभी भी इस बात का एहसास नहीं कराया कि हमारी इतनी आवश्यकता है जिसकी पूर्ति वो नहीं कर सकता। अगर पौलुस यहाँ पर कहता है तो ये हमारी गवाही है। अब मेरे समान हजारों प्रभु के सेवक सेविकाओं की ये टेस्टिमनी। देयर आर मेनी विटनेसेस बाय मेनी पीपल ऑफ गॉड हु हैव सर्व्ड हिम as serving, either full time pastor or evangelist or a missionary or by teacher or doctor or social worker, anything that you do. If you are doing full time for His glory, He is there to, He is the guarantee to supply all your needs, and He has done for us also. And for that, friends, with open heart, I say, Lord, thank you. You are so faithful to us. राज भी मैं कहता हूँ, और उनको मैं धन्य कहता हूँ जो हमारे लिए चिंता करते हैं और देते हैं। प्रभु उन्हें बहुत आशीष दे, because you are a rope holder. You pray for us regularly. You support us. And may God bless you abundantly. Because your commitment, just as your commitment is not for the church or for the pastor, so our commitment is not for the church, but all of our commitment is for the Lord. हमने अपने जीवन को प्रभु को दिया है, और ये उसकी प्रतिज्ञा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा. It is His promise that I will not leave you any day. वो ये भी कहता है कि क्या हो सकता है क्योंकि माँ अपने उस बच्चे को त्यागे, छोड़ दे, भूल जाए जिसको उसने पैदा करा है. बाइबल में यीशु मसीह परमेश्वर कहता है हाँ वो हो सकता है. इट कैन बी डन. इट इज पॉसिबल दैट अ मदर हु हैज गिवन हर बर्थ टू हर चाइल्ड कैन forsake her, but or forsake him, but the Lord God will not do that. वो कहता है मैंने तुम्हारे मुखड़े को अपने हथेली के अंदर खोद के बनाया, मैं तुम्हें रोज देखता हूँ. He has engraved our figures on his palms, and every day, friend, he look at us and he says that my child, my daughter, my son need this, that, and I am there to fulfill their needs. ये हमारी गवाही है.
इसलिए मैं ये कहता हूं कि कलीसिया को संभालने वाला, उसको राज्य को संभालने वाला हम नहीं है. वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर मॉर्टल, subject to death. Today you are listening to me, tomorrow you may hear the pastor is gone. It's possible. It's not impossible. But the one whom I am trusting, whom you are trusting, will not slumber nor sleep. He is there always to supply and provide all our needs. And that is important, friends. Very, very important. Fourth thing and the last thing, verse 10 and 11 and 12. यह विशेष करके हमारे लिए कहता है, हाँ हमारे लिए ही लिखा गया, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे. अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे? जब दूसरों का तुम पर यह अधिकार है, तो क्या हमारे इससे अधिक ना होगा? Now St. Paul talk about the little further. He says, when we serve the Lord faithfully, does not he who speak entirely for our sake? It was written for our sake, because the plowman should plow in hope, and the thresher thresh in hope of sharing the crop. जो जोतता है या जो लगाता है, आज जो दावनी करता है, वो आशा से करता है कि उससे मुझे कुछ मिलेगा. संसार रूप से हर व्यक्ति सोचते हैं, लेकिन जो हमारी आशा है ना, वो आत्माओं की आशा है. कितने लोग प्रभु के पास आ रहे हैं हमारी सेवका के द्वारा, ये हमारी आशा. हाँ मित्रों, इसको हमें अपने सामने जगाए रखने की आवश्यकता है. जब आत्माएं बचेंगी तो प्रभु हमारे जीवन की आवश्यकता की पूर्ति करेगा. वो कभी मुकरेगा नहीं, कभी वो मना नहीं करेगा. लेकिन हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हमारी सेवकाई के द्वारा, थ्रू आवर मिनिस्ट्री, पीपल आर ब्लेस्ड, so they come to the Lord and accept Jesus Christ in their lives as their Lord and Savior. I know many missionaries, especially some of the missionaries who studied with me in the seminary, how faithfully they have served the Lord, and people have come to the Lord because of their ministry. And I have seen them, though not very lavishly, but Jesus providing their each need every day, and today they are content. और आज हम भी content हैं. We are content. We know that He has provided all our needs. We are not in wants. We are not deprived of good things in our lives. You talk about family, you talk about a house, you talk about clothing, you talk about food, and you talk about anything. He has provided our needs in abundance. उसने हमारी आवश्यकता पूर्ति बहुतायत से करी है, और केवल हमारी नहीं, वो सबकी करता है. और पौलुस यहाँ पर ये गवाही देता है कि जब मैं जोतता हूँ, जोतने का कार्य करता हूँ, दावने का कार्य करता हूँ. दावने का कार्य क्या है? कटाई के बाद दावना होता है. क्योंकि उसने मेहनत करी, उसने बीज बोया, तो लोग बचाए गए और लोग प्रभु के पास आए. और अनंत काल के अंदर हमें बताया जाएगा कि कितने लोग हमारी सेवा के द्वारा प्रभु के पास आए. मित्रों, मैं इस बात को जानता हूँ. इन तमाम सालों में जितने साल सेवकाई है, वो लोग प्रभु के पास आए हैं जो प्रभु को नहीं जानते थे, उन्होंने प्रभु को जाना है. और उन सब के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं. मित्रों, हम प्रभु की स्तुति करते कि उसने आज का वचन हमें दिया है. हम जो उसकी सेवा में हैं, उसकी सेवा के अंदर बढ़ते चले जाएं, ताकि हमारे जीवन से उसकी महिमा और उसकी स्तुति, उसकी बढ़ाई हो सके. आज के वचन के प्रभु को धन्यवाद करते हैं. आइए अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपें और प्रार्थना करें. धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, धन्यवाद देते प्रभु आज के वचन के लिए जो आपने दिया. और हमारी प्रार्थना प्रभु के इस वचन के अनुसार आप हमें बनाए प्रभु, ताकि हमारा जीवन, हमारी सेवकाएं आपको पसंद आए. इस धन्य कलीसिया को प्रभु आप बढ़ाएं प्रभु. लॉर्ड, इंक्रीज दिस ब्लेसेड कॉन्ग्रीगेशन ऑफ एपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च, so that we may see fruit in the days to come, Lord. Fruit in terms of your priority, Lord. Fruit in terms of your objective that you have given to us, Lord, so that this church may continue to grow in you, Lord. And when we have that vision of mission, bringing others to Christ, Lord, you fulfill our all needs. In this time of coronavirus, Lord, and this pandemic, we have seen, Lord, how you have provided all our needs, Master. And this is your will,
that you will do this thing, do the same, Lord, in our lives. So, Lord, we continue to look to you. And Lord, we know that because of that, our faces are radiant and we are victorious. We thank you, Lord, that you heard our prayer. Thank you for the word that has come to us. इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, विनती करते हैं प्रभु कि जो वचन का बीज आज हमारे हृदय रूपी खेत में बोया गया, प्रभु व्यर्थ न जाए, पर आपके आत्मा के द्वारा प्रभु ये हमारे हृदय के अंदर प्रभु सींचा जाए, ताकि फलवंती तो इसमें 60 गुना, इसमें 100 गुना और 30 गुना फल उत्पन्न हो सके। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। इस सुंदर कलाम के लिए, सरमन के लिए, और वास्तव में परमेश्वर महान है और परमेश्वर की स्तुति हो। अब ये वक्त होगा कि हम अपने आखिरी गीत को गाएंगे, जो कि पाया जाता है इंग्लिश गीत की पुस्तक में, उसका 248। गीत के बोल इस प्रकार हैं, स्टैंड अप फॉर जीसस, एंड वी विल सिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड बाय सिंगिंग स्टैंड अप ऑफ जीसस। और यहाँ पर ये पाया जाता है, इट इज़ फाउंड इन इंग्लिश बुक, सॉन्ग नंबर 248। लेट अस glorify God by singing this, and the offertory will be taken during this song. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high His royal banner, it must not suffer long. From victory unto victory, His army shall be raised, till every foe is vanquished, and Christ the fallen dead. Stand up for Jesus, the trumpet call obey. For to the mighty conflict in this His glorious day, He gathered men now serve Him against unnumbered foes. Let courage rise with danger, and strength to strength oppose. Stand up for Jesus, stand in His strength alone. The arm of flesh will fail you, cannot trust your own. Put on the gospel armor, each piece put on with prayer. Where duty calls or danger, be never wanting there. Stand up for Jesus, the strife will not be long. They stay the noise of battle, the next the winter song. To him that overcometh, a crown of life shall be. He with the King of glory shall reign eternally. परमेश्वर का धन्यवाद हो इस गीत के लिए। लेट अस प्रे फॉर द ऑफरिंग। आइए हम ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तमाम आशीष बरकतों के लिए जो नाम नाम हमारे जीवन में देते हैं।
खास तौर से इन भेंट के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जबकि ये भेंटों को हम आपके चरणों पर लेकर आए। पिता, ये आपके जलाली कामों के लिए इस्तेमाल हो और संपूर्ण जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जो देखते हैं, जो इस सर्विस के अंदर इन्वॉल्व हैं, हमारे चर्च मेंबर्स, चाहे कोई क्यों ना हो, पिता उन सबको आप बकाया से आशीष दें और उनके ऊपर आपका आशीष भरा हाथ हो। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में के मानते हैं, आमीन। अजी तो अब ये वक्त होगा चर्च अनाउंसमेंट्स का। नाउ इट्स टाइम टू लिसन दी चर्च अनाउंसमेंट्स बाय रेवरेंड डॉक्टर जॉन और विश्वास, फॉलोड बाय क्लोजिंग प्रेयर एंड बेनेडिक्शन। प्रभु का धन्यवाद आज के सुंदर समय के लिए और आज की आराधना के लिए। और मेरी आशा है कि आज की आराधना से आपने आशीष प्राप्त करी है। Dear friends, I hope that we are all being blessed by this service today, this morning. And there are some announcements I like to make here. And I hope that you will also follow it up as we always have been doing. हमारी आराधना जो लिंक के द्वारा होती है, सुबह 10 बजे का समय है। अगले रविवार को हम 10 बजे आराधना के लिए मिलेंगे। और मित्रों, मैं सोचता हूँ कि बहुत ही जल्द ये आराधनालय, प्रभु का भवन आराधना के लिए खोल दिया जाएगा और उसके लिए अपने आप को हम तैयार करें। हर दिन शाम को 7:30 बजे हमारी बाइबल स्टडी होती है और मैं चाहूँगा कि हम इसे हर एक इस बाइबल स्टडी में भाग लेने की कृपा करें। और समय है शाम को 7:30 बजे। इन दिनों में हमारे अध्ययन का विषय है फिलिपियों की पत्री, जो संत पौलुस की पत्री फिलिपियों की कलीसिया के नाम है। डियर फ्रेंड्स, एवरी इवनिंग वी मीट फॉर द evening Bible study and prayer, and the time is from Monday to Saturday 7:30 p.m. and nowadays we are studying the letter of St. Paul to the church at Philippi, and we hope that God is going to bless us. Also every Sunday we have this Sunday school at 4:30 by Zoom, so please contact Dr. Petra George about this worship service so that you all are blessed. I also request our youth, our boys and girls, MYF, they are having every Sunday meeting by Zoom, and their time is from 2 o'clock. So I request all our youth members to please contact Brother Utkarsh and get connected to this meeting. And also we have our WC sister meeting every second Saturday of every month, and time is also 4 o'clock. WCS मीटिंग, हमारे WCS बहनों की मीटिंग होती है। समय है शाम को 4 बजे हर सेकंड सैटरडे को। मित्रों, मैं चाहूँगा कि हम इस बात को भी याद रखें कि हमारी स्पेशल बाइबल स्टडी जो संडे को होती है, सेकंड संडे और फोर्थ संडे को, और इन दिनों में हमारा विषय है द बुक ऑफ डैनियल। दानियल की पुस्तक से हम आराधना करते हैं, उस पर अध्ययन करते हैं, और मैं चाहूँगा कि हम इसके लिए तैयारी करें। इन दिनों में हम 5वें और 6वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। Nowadays we are studying the 5th and 6th chapter of the book of Daniel. So I hope that you remember everything and follow it up accordingly. Dear friends, most of us have not paid the church fund for some or other reason maybe, but please do so, kindly do so. And for that the church office is open from Monday to Saturday. By the grace of God, our finance is all right, and we have God's blessing and all of your cooperation and your generosity. So continue to exhibit that and kindly deposit your church fund. You can do net transfer also, or you can come in person. Our church office is open from 10:30 a.m. to 5:30 p.m. every weekdays, Monday to Saturday. And also you can deposit your Sunday offering money and get the receipt instantly. मित्रों, मैं चाहूँगा कि आप अपने पास, आपके पास जो संडे ऑफरिंग रखी हुई है, जिसके लिए प्रार्थना करेंगे, जिसको आपने दिया, उसको लाके जमा करें। और हमारे चर्च ऑफिस हर सोमवार से सैटरडे तक खुलता है। समय है सुबह 10:30 से शाम को 5:30 बजे तक। आप उसका फायदा आइए और अपने चर्च फंड और संडे ऑफरिंग जमा करें।
साथ ही साथ अगर आपको पादी साहब से बात करनी है, उनके सामने अपने प्रेयर रखनी है ताकि वो आपकी प्रार्थना करें, तो पादी साहब आपको ऑफिस से मिलेंगे, अपने ऑफिस में, चर्च ऑफिस में। उसका भी समय यही है, सुबह 10:30 से शाम को 5:30 बजे तक, हर वीकडेज में, यानी मंडे टू सैटरडे। मैं चाहूँगा कि आप इन बातों को ध्यान रखें और दूसरों को भी बताएं। आइए प्रार्थना करें और अपने आप को प्रभु के हाथ में रखें और आज आराधना को समाप्त करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के भी पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं आज की सुंदर आराधना के लिए प्रभु, जो आज हमने करी। और हम जानते प्रभु कि आज आपने हमारी आराधना स्वीकार करी। अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं, सारी आदर भक्ति महिमा आपको देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस धन्य कलीसिया पर, एपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च पर आपके आशीष बने रहे। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें, हमारे तमाम उन बातों के लिए प्रभु जो हम जीवन में करते हैं, आपकी अगुवाई हमें चाहिए प्रभु। आप हमें हर बुराई से बचाएं, शैतानी के राह से बचाएं प्रभु, ताकि हम अपने बढ़ते चले जाएं, ताकि हमारा जीवन, हमारी सेवकाएं आपको पसंद आए। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रोल को दुष्पीफा का शिराकत हमें शरीर के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहेगी, आमीन।